introduction is basically a hook to your entire paper. So the examiner in a 30 seconds gonna judge your paper. It's gonna judge you, and that is how your marks are going to be decided. So examiner has read the opening thousands of sites. So give them something new which is unique, and I've told you 3 ingredients you need to put for this. I am creating a very strong impression in front of my examiner. Now they know कि okay, this person has very different approach to see the things. That's what you need to develop. Idea बहुत अच्छा है उनका कि जो टेक है वो अपने आप नहीं आता, कुछ चीजों से बनता है, ये उनका थॉट प्रोसेस था, बट वो बता नहीं पाए। अब उसी चीज को हम लोग ना ये टेंशंस जो 3 एलिमेंट्स बता रहे हैं उसको बात करेंगे। यू आर फेलिंग टू आर्टिकुलेट बिकॉज यू डोंट नो द क्रिटिकल एलिमेंट्स। लास्ट एपिसोड में हमने पैराग्राफ के 4 की एलिमेंट्स बताए थे, यहाँ पे हम लोग 3 की एलिमेंट्स बता रहे हैं। अराइव्स बिफोर वी कैन कंसेंट टू इट एंड ऑल ऑफ इट होल्ड्स अप द रूफ ओवर आवर हेड्स। है भी, आप नहीं डिनाई कर सकते, आप अपनी फैमिली को डिनाई नहीं कर सकते, आप अपने नेशन को अभी डिनाई नहीं कर सकते, अभी है, वो इनहेरिटेंस है। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे टॉपिक खोलना कैसे? फिर अभी मेटाफर को देखो, मेटाफर का एक्चुअली एनालॉजी किसके साथ है वो समझो, वो प्रीमाइस दिया क्यों है वो बताओ, और इसके आगे क्या गहराई से सवाल पूछने चाहिए वो बताओ। ये होना चाहिए आपके इंट्रोडक्शन में। लाइक वी हैव ऑलरेडी गिवन लाइक व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द पैथ दैट मींस यू लॉस्ट द ट्रैक। सो रियल क्वेश्चन इज दैट व्हेन इज अ वैंडरिंग अ लॉस ऑफ द पाथ एंड व्हेन इट इज द पाथ इटसेल्फ। क्या समझ रहे हो? इतना फिलोसॉफिकली ही थॉट आउट है ये कि जहाँ पे अगर आप इस सारे क्वेश्चन को थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस के साथ मर्ज करोगे, मैरिनेट करोगे, इट विल गिव, definitely will fetch you a very good marks. Welcome to the episode 6th of Jamhiyat Majari. In the last episode, what we have discussed is how you can really build a very strong paragraph and what are the 4 elements that a paragraph can really have so that you can have a very, very strong arguments. So if each paragraph is containing such 4 elements, you can have a very good synergy and a solid argumentations. Okay? Now, the next episode. This is again for your hit. And this time, we are bringing up with a very good understanding for you कि आप introduction किस तरह से अच्छे से दे सकते हो. Because we have done our FLT, we have done our course for a Smash Essay program, and we have interacted with multiple students. And here again, one of the trap that we felt that you all should know and understand is that even the copies who are like doing a very good veterans, they are missing out on a certain elements जो introduction में नहीं है. आइडियाज बहुत अच्छे से आते हैं, आप डिकोड बड़ा अच्छे से कर लेते हो, आइडियाज भी अच्छे से आते हैं, बट जिस हिसाब से उसको पेपर में या फिर कनेक्टिंग होना चाहिए ऐसे टॉपिक के साथ वो नहीं हो पा रहा है. ठीक है? एंड व्हाई इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट? इंट्रोडक्शन इज बेसिकली अ हुक टू योर एंटायर पेपर, राइट? So the examiner in a 30 seconds gonna judge your paper. It's gonna judge you, and that is how your marks are going to be decided, right? So that's why introduction is very good. It has to be very good. Okay, so it should not look like a school-going essay copy. It should look like someone has really very well thought out person, and it's a copy of a thinker, and not of someone who really wants to talk or bucker over there, right? So let's do one thing. Let me tell you what is the 3 things that must be reflective in your introduction. First, it should be reflective of your tensions. Like what are the core tensions the topic really holds? We have often talked about the task format like Rohit sir and me and in our seminars and in our workshops, like how you have to identify the tensions. So far, like we assume that you understood ki there are tensions that we need to figure it out. Okay? Second is that the core issue, like why the address, like we often say, right? Why the GAN was given. So what is the thing that the court wants to address? That also have to be really giving the premise. Okay, because of this is there. And the third thing is you have to end your introduction with the pertinent questions. We call it as elevator pitch. So these 3 elements needs to be very reflective in your essay copies. And in today's episode, what we are going to do is that I'll tell you what the weak argument look like again. So I'll give you 3 or 4 essay topics. There would be a few from the UPSC PYQ. There would be some from our FLTs, full length test. Okay? And that would be your copies. तो आपको खुद समझ में आएगा कि जब स्टूडेंट लिखते हैं किस तरह से लिखते हैं. And all the copies that I've taken, these are the students who are actually appeared in the mains previously. And they are actually stuck around the marks of 110 or 96 or in that range. Okay, so we are going to understand and decode exactly what you guys need to improve in. Let's get started. This is your UPSC topic. A ship in a harbor is safe, but that is not the ship is for. Again, action versus inaction. If you've gone through the micro themes PDF, जो हम बार-बार कह रहे हैं कि उसकी तरफ जाओ, action versus inaction prepare करो. Last इसमें आपने videos में देखा भी होगा किस तरह से देना. Now this is also same thing. Okay, but now let's see how the weak paragraph looks like. और अगर हम 3 elements जो हम बात कर रहे थे,
tensions, उसकी core demand और pertinent questions डाल दे, तो same paragraph can give a different hit to the story. Okay, and there are certain words which you should often not use. Okay, that is a really off for the reader. Like, so let's read. I'll just give you a brief. Okay, what is given here? यहाँ भी बात बताइए कि एंशियंट टाइम से जो है वो शीप जो है वो वहां पे हार्बर पे रुकती है, ठीक है, बट नाउ द पॉइंट इज दैट कि बट शिप स्टेज इन एन हार्बर फॉरएवर. तो अगर वही शिप बार बार वहीं पे रुकना चाहती है, सिंस एंशियंट टाइम, दीज आर द वर्ड्स दैट इज वेरी टर्न ऑफ. ओके, यू शुड नॉट यूज एज सच. एंड द सेकंड इज ऑल, इट्स वेरी प्लेनली सिंपली उसी चीज को जो शिप के बारे में है बहुत सिंपली उस तरीके से बताया गया है. और क्या बताया गया है इन्होंने? बट द शिप स्टेज इन द हार्बर फॉरएवर, इट कैन नॉट डू द रियल वर्क. In the same way, human beings should also come out of their comfort zone and take the risk. एक लाइन में कुछ चीजें बताने की कोशिश की कि it's about the comfort zone and taking risk. But the entire picture is not so much powerful कि जहाँ पे हम लोग बता सके कि okay, this is night representation or you know something good is coming up. What are the things that are stirring off these words since the ancient time? You know, your examiner is reading such kind of a cliches which is like very old school thing कि जिसने कुछ लिखा ही नहीं, पहली बार लिख रहे या फिर you know सदियों से ऐसे होता आ रहा है, something like that. These are like turn off. Second, when you start doing like firstly, secondly, you know, thirdly, these are like GS topic, you know, stories which you GS topic answers which are actually given. So उस तरह से नहीं लिखना चाहिए. So there are certain जो आपका इंटरप्रिटेशन होना चाहिए टॉपिक का, जो आपका आर्टिकुलेशन होना चाहिए, इट हैज टू बी वेरी एंगेजिंग एंड इट हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर विथ व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्ड्स दैट यू आर यूजिंग. सो ऑफन वी हियर कि मैम हमारी लैंग्वेज सही नहीं जा रही, हमें नहीं पता किस तरह से लिखना है. सिंपल लैंग्वेज में लिखो, बट इतना सोचो कि आपको अपनी आइडियाज बहुत क्लियरली बखूबी से निभानी है. अगर आपकी आइडियाज, आपकी थॉट प्रोसेस जो आपको बताना है, अगर वो क्लियर है तो अपने आप योर वोकैबुलरी विल रिफ्लेक्टिव ऑफ दैट. ओके, सो this is it. So examiner has read the opening thousands of signs. ठीक है, so give them something new which is unique and I have told you 3 ingredients you need to put for this. Okay, so let's understand कि ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वीक, ये फेल क्यों होता है. नंबर 1, it opens with a something very simple dictionary कि what is ship, ship का representation दे दिया and फिर चीजें आगे दी है. So it's simple opening of a stationary dictionary is not a good start with. Second, never name the core issue. यहाँ पे इतने कोर इशू को अच्छे से उभर के नहीं बताया, बस एक सेंटेंस बताया कि जैसे यू नो ह्यूमन बींग्स शुड ऑल्सो बी कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन एंड यू नो हैव टू टेक रिस्क, बट दे आर नॉट एबल टू ओपन अप इट वेरी वेरी क्लियरली. थर्ड, इट्स पिक्स द साइड एंड दैट्स इट. सो ऑलवेज टेक अ रिस्क. मतलब जब आप ये सोचते हो तो इसका वन साइडेड नेचर आपको समझ में आता है. हाँ, जो शिप है वो अगर हार्बर में फॉरएवर रह गई तो उसके बाद वो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए शिप की तरह ही ह्यूमन को भी कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए और रिस्क लेना चाहिए. That means the entire story is one-sided story and that's where the script fails. Okay? Now, third mistake that actually is happening. There is no tension reflective of it. सिर्फ इतना बताया कि तो ये टेंशन बताना चाहिए कि कंफर्ट जोन नहीं करना चाहिए, आपको रिस्क में जाना चाहिए. बट एग्जैक्टली यही तो टेंशन है. इसको आप किस तरह से निकाल रहे हो? तो यही हो रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट टेंशन अगर फिगर आउट कर भी पा रहे हैं तो उसको प्रेजेंट कैसे करना है अपनी कॉपी में वो नहीं समझ आ रहा है. विल सी दैट हाउ टू यू नो प्रेजेंट दैट. स्टे विथ मी. Okay, announce instead of thinking. So it's like in this essay we will discuss this. This is not, you know, you should start with. Okay, it has to be engaging and the paragraph, the shifting paragraph, the bridge lines that we say, it shouldn't be like this. So in this essay we'll do this and we'll do that. That is also one of the things. As I said, since the time age, don't use this. Firstly, secondly, don't use it. This kind of a thing. In this essay we'll discuss this. Don't use such jargons in your paper. Okay, next. There is no question asked. जो कि elevator pitch की हम बात करें, there are pertinent questions कि आपको next paragraph पढ़ने में exactly क्या आने वाला है. You have to make examiner take interest in your copy, right? So how can we correct this? Now, understand. Same topic, but I have incorporated the 3 dimensions and can you see how different the entire paragraph looks like? Okay, so it's all about the articulation. और articulation करते वक्त आपके दिमाग में वो 3 चीजें आनी चाहिए कि ये reflective of tension है कि नहीं. सेकेंड, क्या इसमें जो कोर इशू बताए गए हैं, क्या वो कोर इशू किस प्रीमाइस पे बताए गए, क्या मैं वो एग्जैक्टली बता पा रही हूँ. अगर मेटाफर है तो क्या मेटाफर को ढंग से मैं समझा पा रही हूँ. और तीसरा, क्या मैं अपनी इंट्रोडक्शन को कुछ ऐसे सवाल के साथ एंड करूं जो कि मेरा एलिवेटर पिच है, जहां पे मैं कुछ ऐसे मुद्दों के सवाल उठाऊं जिसके साथ एग्जामिनर को पता चले कि हाँ, इस कॉपी में ये सारे सवालों के जवाब दिए गए हैं. एंड देन विल टेक अ मोर इंटरेस्ट इन योर थीसिस. द एग्जामिनर विल टेक अ मोर इंटरेस्ट इन एंटीथेसिस एंड देन ही विल बी ब्लोन by your, you know, synthesis. Okay, then let's lead what I've said. I've said harbor is not a prison.
It is a promise. How? It is a shelter that ship from the storms. It keeps the whole of the whole by the crew another calm night. And yet a ship that never leaves the harbor slowly stop being the ship at all. यही तो मिलता है, अगर आप बाहर नहीं निकले जिस चीज के आप जाने चाहते हो, अगर आप वही चीज नहीं कर रहे, इंसान जो सोच रहा है या फिर जो करना चाहिए, अगर वही चीज नहीं कर रहा तो क्या हम उसको उस डेफिनेशन में डाल सकते हैं? This is something I have written. Same thought, but put it out a little slightly differently. Okay, next. It becomes a monument to a voyage that was never taken. Next line. Here lies the tension every person and every nation must face. Safety protects us, but the same safety held for the too long begins to rot the very thing it was meant to protect. यहाँ पे अभी हमने क्या किया है, जो प्रीमाइस था वो प्रीमाइस देने की कोशिश की, जो कोर इशू है वो कोर इशू बताने की कोशिश की. एंड कैन यू सी, आई हैव नॉट यूज्ड इट. इट्स लाइक economy of words, like how well you can in 2 lines I've finished it, and the last line I'm putting a question which is elevator pitch. So the real question this topic asks is not whether we should be safe or brave, that we should be living in a comfort zone or a risk. It's talking about, it is sharper than that. At what point does the safety that guards our purpose begins to defeat it? So what I've tried to do, tension बताया है, core issue बताया गया है, question बताया गया है. In that order, inside a one paragraph, I am creating a very strong impression in front of my examiner. Now they know कि okay, this person has very different approach to see the things. That's what you need to develop. Now let's do one thing. यहाँ पे आप समझो किस तरह से मैंने ऐड किया. तो जब भी आप सोचो इंट्रोडक्शन देना है आपको किसी भी चीज के बारे में, आपने ब्रेनस्टॉर्म कर लिया होगा, आपको थीसिस पॉइंट पता है, आपको एंटीथेसिस पॉइंट पता है, आपने सिंथेसिस भी गए. नाउ इट्स अ टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हाँ मुझे इंट्रोडक्शन देना है. तो जब भी इंट्रोडक्शन के बारे में पूछोगे आप कि आपको किस तरह का इंट्रोडक्शन देना है, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आप 3 चीजें दिमाग में रखो. क्या मेरे इस पैराग्राफ में, इस इंट्रोडक्शन में टेंशन को मैं रिफ्लेक्टिव कर पा रहा हूँ कि नहीं, या मैं उसके कोर प्रीमाइस, ये किस इशू को एड्रेस करने के लिए मुझे चीज बताई गई, फॉर व्हाट रीजन द विजडम हैज बीन गिवन टू मी, am I able to address that? Or third चीज, if I am given the entire ऐसे topic a different view, point of view, कि जहां पे मैं इस एंगल से भी सोच रहा हूं, ये होते हैं pertinent questions, क्या वो मैं कर पा रहा हूं, नहीं तो आपको थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. And that is what we actually often talk about, a directed brainstorming. If you have not watched the entire series of Janhit Majari, I would recommend you start from the episode first, so that you'll understand कि how to decode the topics. Now क्या करना है, टेंशन बताना है. तो टेंशन क्या है बच्चा इसमें, कि एग्जैक्ट टेंशन है कि स्टे प्रोटेक्टेड अस बट द सेम सेफ्टी हेल्ड फॉर टू लॉन्ग बिगिन टू रॉट एवरीथिंग दैट इज मेंट टू बी प्रोटेक्टेड. सो जो बोथ साइड्स हैं यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की है. सेकंड द कोर इशू वाज, इट्स अबाउट पीपल, इट्स अबाउट नेशन. सो शिप और बोट जो हमने बात की गई, सो इट्स अबाउट दीज पीपल, मेटाफर को ओपन कर दिया. एंड देन द पर्टिनेंट क्वेश्चन, एट व्हाट पॉइंट डज द सेफ्टी दैट गार्ड्स आवर पर्पस बिगिंस टू डिफीट इट. These line gives a very different picture and different push to my entire essay. Now, what we'll do is, we'll check your copies. Now we'll go exactly, precisely where you feel where the students are making mistake and how the essay copy looks like. Okay? This is one example which I wanted to give you in the point of view from the, your PYQ. Now this is, all the copies are from our FLT students. Okay? So let's move ahead and let's understand where it's going wrong. This is the screenshot which I have taken. The FLT topic, first FLT जो हुआ था हमारा, उसका ही topic है, technology can become the wing that will allow the actions of a future to take off. इसका मतलब टेक्नोलॉजी एक जरिया है इवन भविष्य में आपको उड़ान भरने के लिए. ओके, दिस इज हाउ यू कैन इंटरप्रेट. सो द प्रोज एंड कॉन्स जो हमेशा हम कहते हैं कि क्या फायदे हैं, क्या है टेक्नोलॉजी, क्या कर सकता है, इट्स अबाउट दैट. नाउ द पैराग्राफ दैट यू आर एक्चुअली सीइंग इट, उसको मैंने क्रक्स में निकालने की कोशिश की है. क्या बताया है इस पैराग्राफ में? पैराग्राफ में बताया कि भाई इंटरप्रेट किया उन्होंने कि बर्ड जो है, बर्ड किस तरह से इवॉल्व हो रहा है, डार्विन के टाइम से बर्ड इवॉल्व होते जाता है. दिस इज द इंट्रोडक्शन बाय द वे. ओके, सो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो aves begins to evolve differently as explained by the Darwin's evolution. ठीक है, फिर वो कहते हैं evolution, they develop a limb initially adjutant but something that is never would literally for them, like वो wings जो है किस तरह से बनी है, क्या हुआ है, इस तरह से explanation दिया गया उसका. एंड फिर आगे जाके बताया कि wings made the birds entitled for a mesmerization for other fellow living things. Now can you understand? यहाँ पे पूरा का पूरा जो टॉपिक का जो कनेक्ट है और जो इन्होंने बताया गया है मेटाफर लेके,
एग्जैक्टली जो बर्ड के बारे में जो चीजें यहाँ पे इन्होंने लिखी है, टाइप ऑफ इवोल्यूशन एंड सो, अगर उनका थॉट प्रोसेस ये है कि ओके दिस इज व्हाट यू नो इन द नेक्स्ट पैराग्राफ ही हैज सेड दिस इज व्हाट यू नो टेक हैज डन फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, बट दिस इज सच अ वीक, इट इज गोइंग सो वीक। आई थिंक यही वीक पैराग्राफ जो है वो आप समझ में आ रहा होगी हाउ इट इज गोइंग वीक। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एंड लेट्स टेक कि व्हाट इज मिसिंग। यहाँ पे मिसिंग टेंशन भी मिसिंग है, कुछ पर्टिनेंट नहीं समझ में आ रहा है। ये नहीं कहते कि कोहेरेंट होना चाहिए, यूपीएससी का सिलेबस ही आपको बता रहा है कि यू हैव टू वेरी कंसाइज, यू हैव टू वेरी कोहेरेंट, कोई चीजें नहीं है। तो 3 चीजें यहाँ पे इंट्रोडक्शन में मिसिंग है, दैट इज अ टेंशन, core issues, and what is the pertinent things you know that you need to ask. तीनों चीजें यहाँ पे मिसिंग है। What you need to do is you need to add these 3 things and then now see same idea about the bird को यूज करके I have tried to add, ये स्टूडेंट को बताने के लिए कि अगर आपके पास वो आइडिया है तो आपको 3 एलिमेंट्स ऐड करने, and that is how you can give a very solid you know hook to the your essay. Now read what I've written. Bird did not simply grow wings, क्योंकि उन्हें इवोल्यूशन की बात बताई है, तो हम अभी बताएंगे कि विंग्स अपने आप नहीं आते। आइडिया बहुत अच्छा है उनका कि जो टेक है वो अपने आप नहीं आता, कुछ चीजों से बनता है, ये उनका थॉट प्रोसेस था, बट वो बता नहीं पाए। अब उसी चीज को हम लोग ना ये टेंशंस, यही जो 3 एलिमेंट्स बता रहे हैं उसको बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या देता है, अ बर्ड डिड नॉट सिंपली ग्रो विंग्स, टू फ्लाई इट हैड टू गिव अप समथिंग। What is that? It has to hollow its bone, loses its teeth, surrender to the safety of the ground. उड़ान भरने के लिए जमीन छोड़नी पड़ती है। This is how we have to do. Every flight in a nature has been paid for something to surrender, right? So ये जो wing बने, तो wing का मेटाफोर थोड़ा ओपन करने की कोशिश की। This is how you can open. Wing रहता है मतलब क्या? तो कुछ चीजें आपको समझनी पड़ती है, उड़ान भरने के लिए क्या जरूरत है, यहाँ पे हम लोग वो बात करें। पहली लाइन 2 सेंटेंस ओनली, देन नेक्स्ट पैराग्राफ टेक्नोलॉजी। अब मैं उस मेटाफर को एक ओपन अप दे रही। नाउ टेक्नोलॉजी हैज गिवन ह्यूमैनिटी इट्स विंग एंड द व्यू फ्रॉम द हाइट इज रियल, राइट? अभी मैं फ्लाइट को, जो फ्लाइट एक मेटाफर जो यूज किया गया उसी को मैं यूज कर रही हूँ। तो टेक्नोलॉजी ने ह्यूमंस को, ह्यूमैनिटी को विंग्स दिए हैं और हमें उड़ान भरने की कोशिश की। और जब उड़ान देखते हैं हम लोग तो देख पाते हैं कि जमीन पे सच में जमीनी हकीकत क्या, उसने क्या क्या चेंज किया। और फिर मैंने वो लिखा है कि सच में डिस्टेंस हैव बीन कोलैप्सेस, डिसीजेस जो है उसको ट्रीटमेंट मिला है। A farmer in a one district reaches a buyer to the another. ये सारी टेक्नोलॉजी की है। That means yes, technology has worked as a wing for us. Here lies the tension, but the same wing that lifts some of us are built out of the ground that the others are still standing on. And the higher we fly, the harder it becomes to see. कहीं इतनी भी उड़ान ना भर दे कि हम हमारी ह्यूमैनिटी को ही भूल जाए। ये टेंशन यहाँ पे पॉटर ने दिखा दिया। ये तभी हो सकता है बच्चा, इस तरह के आर्गुमेंट जहां पे आप कॉन्स्टेंटली ब्रेनस्टॉर्मिंग करते वक्त ये समझो कि मुझे इतना स्पेसिफिक मुद्दा उठा के बताना है, मुझे कोई बिटिंग अराउंड द बुश नहीं करना है। एंड कैन यू सी 1 सेंटेंस? ओके, आई हैव सेड। सो द क्वेश्चन इज नॉट वेदर द टेक्नोलॉजी कैन गिव द फ्यूचर इट्स विंग, इट इज हु होल्ड दोज विंग्स एंड हु पे फॉर द फ्लाइट। विंग जो है भाई, हु इज गिविंग अस द विंग एंड हु इज द पेइंग फॉर द फ्लाइट, ठीक है? So this is what you have to do. Now you can bring up a very different dimension कि जिस तरह से टेक एडवांसमेंट हो रहा है, क्या उस हिसाब से टेक लिटरेसी हो रही है, या फिर जिस हिसाब से हम देखते हैं कि जो टेक में भी डिवीजन आता है, इनइक्वालिटीज आती है। कुछ लोगों के पास सच में उसको पता है, कुछ लोगों के पास उसका एक्सेस नहीं है। The same cancer patient can basically having a advancement in the treatment, but cannot be taken by the other people. Okay, these are the inequalities also take. तो किस लोगों को साथ लेके जा रहे हैं हम लोग फ्लाइट पे, किसके बेसिस पे, और विंग सच में किसको दिए जा रहे हैं? ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपके ऐसे में अगर होंगे तब वो बनता है एक स्ट्रॉन्ग एस। नाउ यू अंडरस्टूड कि हम, अगर आप सोच भी रहे हो, दिस इज व्हाट हैपनिंग विद एवरीवन, everyone is having a very good ideas, you're brainstorming it well, but when it comes to the articulation na, you're failing to articulate because you don't know the critical elements. Last episode में हमने पैराग्राफ के 4 की एलिमेंट्स बताए थे, यहाँ पे हम लोग 3 की एलिमेंट्स बता रहे। ये अगर आपके ऐसे के इंट्रोडक्शन में रिफ्लेक्टिव है, that means you're going in a right direction. Now let's see and check the another copy. Now there's another copy, another topic, which is we inherit a house, but we must decide which wall to keep and which to break. Got it? We inherit a house. हमारे पास एक विरासत आती है ना, वो विरासत के साथ हमें करना क्या है, कौन सी वॉल को हमें ब्रेक करना है, कौन सी वॉल को हमें वैसे ही रखना है। ये बहुत बड़ा डायलेमा है। अब इस क्वेश्चन के साथ ही आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये इट्स अ डायलेमा बिटवीन वेदर टू कीप इट
or whether to break it, right? This is the dilemma itself. Now, let's see what the student has written. Student has written that Ashoka, the greatest, Mauryan king, has inherited a vast and powerful empire built by the vision of its grandfather, Chandragupta. Strength, realism, ruthless, it was, resembling. So, it's basically given and trying to give in the Ashoka ka example, कि what he has inherited and all of that. यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, टेंशन जो है एग्जैक्ट यहाँ पे मिस हो जाता है. सेकंड, कोर इशू जो है इसके बारे में ये थोड़ी हाफ बात कर रहा है कि दैट Ashoka decides to keep the element of a strength but broke the wall of the despotic, ruthless and adapted the path of a Dhamma. तो यहाँ पे जो बात है वो कोर इशू हाफ वे एड्रेस किया हुआ लगता है एंड पर्टिनेंट क्वेश्चन तो मिसिंग ही है. सेम, ठीक है, सेम कॉपी है, लाइक सेम टॉपिक है बट दूसरा टाइप का इंट्रोडक्शन है जो भी अगेन what is the missing, we are going to discuss that. Here the entire anecdote is given that there is one family and in the family the father abuses the mother, and the two sons are then, after this incidences, the two sons which then decided, one decided no, he will not repeat what his father has done, and the second will actually continue abusing because he has seen. And दोनों को अगर सवाल के जवाब पूछो तो वही बताते कि नहीं यार मेरे पापा ने मेरी माँ के साथ अच्छे नहीं किया है, वी नो दैट ही हैज बीन वेरी अब्यूजिव. सो आंसर तो सेम ही है दोनों, लाइक क्वेश्चन तो सेम ही है उसका कि भाई क्यों ऐसे बिहेव क्यों किया, बट एक्शंस आपको डिफरेंट दिखाई देंगे. दिस इज व्हाट द इंट्रोडक्शन इज ऑल अबाउट. Okay, this is what I've written for your legibility. There are two brothers give up watching the same father abuse it. One of them continued to abuse, another is actually taking the different path. In this, tension जो है वो implied दिखाई दे रहा है कि हाँ मतलब क्या somehow what we need to keep, what we need to not. But यहाँ पे उसका mechanism यहाँ पे ढंग से समझ नहीं आ रहा है, इसलिए it's a halfway. Okay, it has to be so clear कि आपको समझ में आ गया. कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन दो कि वो controversial ना हो, जिसके कोई सवाल ही ना उठाया जाए. Second, core issue is somehow present. Okay, it's there. Now the question is no questions. ठीक है, so इसके आगे जाने के लिए कौन से पाथ होने चाहिए, यहाँ पे वो रिफ्लेक्टिव नहीं है. Now what you can do is सेम टाइप की अगर आप बात करोगे तो उसमें हम लोग तीन चीजें अभी ऐड करने की कोशिश करेंगे. टेंशन, second is your core premise, why it was given, and the third thing is pertinent question. Same topic but not, what we'll do is we'll change somehow ये elements कैसे incorporate कर सकते हैं. Listen to me very carefully. No one chooses the house they are born into. A caste, a language, a way of speaking to your mother tongue, the way you speak to your mother at the dinner table, a nation's constitution. So all of these are actually inheritance. So हम inheritance को इस तरह से बता रहे एकदम बखूबी क्या है इनहेरिटेंस. तो हमने बताया कि हाँ हमें पता नहीं किस घर में बॉर्न करेंगे. दिस आर द थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी गिवन. ऑल ऑफ इट अराइव्स बिफोर वी कैन कंसेंट टू इट एंड ऑल ऑफ इट होल्ड्स अप द रूफ ओवर आवर हेड्स. है भी, आप नहीं डिनाई कर सकते, आप अपनी फैमिली को डिनाई नहीं कर सकते, आप अपने नेशन को अभी डिनाई नहीं कर सकते, अभी है वो इनहेरिटेंस है. तो यहाँ पे टू लाइन्स ओनली आई हैव ट्राइड टू गिव दैट. ओके, तो वो इनहेरिटेंस का एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन यहाँ पे आ गया. सेकेंड, that is the first difficulty. A wall that confines is also a wall that supports, and from inside the house has to look exactly alike. Here lies the tension. Every generation inherent along with the property, we are asked to become free of what shaped us, and at the same time we are what we shaped of. तो हमें ये कहाँ से, हमारी आइडेंटिटी कहाँ से आई और हमें एग्जैक्टली क्या बनना है, ये जो डायलेमा है ना, एग्जैक्टली व्हाट थिंग टू कीप एंड व्हाट टू लीव, ये यहाँ पे अभी उसका प्रीमाइस बताया मैंने, राइट. पहले उसका एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है क्या नहीं बताया, प्रीमाइस बता रहे हो, एंड देन आई एम कमिंग अप विद 1-2 लाइन्स. सो द रियल क्वेश्चन इज नॉट वेदर टू ब्रेक द वॉल्स, इट इज हाउ डू वी टेल अ लोड बियरिंग वॉल फ्रॉम अ प्रिजन वॉल एंड वेल वी हैव ओनली एवर लिव्ड इनसाइड द हाउस. किस तरह से हाउस चाहिए आपको, क्या चाहिए, क्या चाहते हो आप अपने इनहेरिटेंस से, ये सारी चीजें यहाँ पे अभी करनी है आपको. एंड देन यू कैन कम अप विद लाइक यस वी आर नॉट ओनर ऑफ द हाउस, वी आर द केयर टेकर ऑफ द हाउस, एंड दैट्स व्हाई वी शुड बी मेकिंग श्योर कि व्हाट वी आर एक्चुअली सपोज्ड टू गिव अ लेगेसी टू द नेक्स्ट जनरेशन. दीज आर सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट हैज टू बी कम फ्रॉम दिस. नाउ वी हैव सीन 2-3 थिंग्स स्टफ. लेट मी समराइज इट फॉर यू. पहली चीज जो आप मिसिंग कर रहे हो वो करो कि that every copy opens up with an example. Okay,
एग्जाम्पल के साथ ही आप दोगे, दैट इज फाइन, बट दैट एग्जाम्पल शुड कंसिस्ट ऑफ व्हाट एलिमेंट्स बच्चा? द एग्जाम्पल शुड कंसिस्ट ऑफ द प्रीमाइस, why the premise has been given. Second, what is the exact, the opposite factors, what is the limitations of the topic, and can you able to put it out in a paper, on a paper. And the third is the pertinent questions, right? So all the three arguments are one sided. अगर आपने पेपर में देखा होगा one sided argument हो जाता है, वैसे नहीं करना है, तो आपको वहीं पे बेक करना है. क्योंकि सोचिए आप, अगर आप एग्जामिनर को फर्स्ट 2 पेजेस में ये बता देंगे कि यू नो आप सच में हटके सोच रहे हो, यू आर नॉट सपोर्टिंग इट, व्हाई द एग्जामिनर हैव टू वेट कि जहां पे आप थोड़ा सा यू नो इट जस्ट लाइक फॉर द डेकोरेशन यू आर गिविंग द एंटीथेसिस, ऐसा नहीं होना चाहिए. दिस इज हाउ आई एम थिंकिंग. तो ये थिंकिंग प्रोसेस को आपके यू नो डायरेक्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग को ये आदत लगवाओ, इस हिसाब से मुझे लिखना है. गॉट इट? सो वी हैव सीन द 2 कॉपीज हैव आस्क्ड नथिंग, द थर्ड हैव आस्क्ड सर्टेन फ्यू पर्टिनेंट क्वेश्चन. अभी आपको उस तरह से डेवलप करने हैं आपके आर्गुमेंट्स. सो थिंक इन दैट वे. ओके बच्चे, नाउ विल गो with one of the PYQ. I'm trying to give you a maximum, inputs from my end कि ये टॉपिक को आप इस तरह समझो, क्योंकि एक हाथ 2 टॉपिक करके शायद उतनी क्लैरिटी ना आए आपको. दैट्स व्हाई आई एम कमिंग अप विद अनदर थिंग. दिस इज आल्सो योर PYQ. ठीक है, तो 2 PYQ लिए बच्चा, 2 FLT कॉपीज लिए. ठीक है, नाउ द टॉपिक इज दैट नॉट ऑल हु वैंडर्स आर लॉस्ट, राइट? तो एक वीक आर्गुमेंट ऐसा होता है कि वैंडरिंग मीन्स मूविंग विदाउट अ डायरेक्शन. इन टुडेज वर्ल्ड पीपल वैंडर्स अ लॉट. So it's like a definition and then the end point. This is not how you should supposed to write. अभी आपको एक अभी समझ में आ रहा है आपको ऐसे टॉपिक खोलना कैसे? फिर अभी मेटाफर को देखो, मेटाफर का एक्चुअली एनालॉजी किसके साथ है वो समझो, वो प्रीमाइस दिया क्यों है वो बताओ, और इसके आगे क्या गहराई से सवाल पूछने चाहिए वो बताओ. ये होना चाहिए आपके इंट्रोडक्शन में. गॉट इट? नाउ लिसन टू दिस, व्हाट वी हैव रिटन. वी आर टॉट अर्लियर दैट अ स्ट्रेट लाइन इज अ मार्क ऑफ अ सीरियस लाइफ, एंड एनीवन who strays from this line has failed. Like we have already given, like what we are supposed to do, right? If you're not following the path, that means you lost the track. Okay? Now, but some of the deepest discoveries in a history were made by the people who looked from the outside and completely lost. तो ये तो premise बताना था, right? तो वो tension बता रहे हैं हम लोग apparently. Then, a life needs a direction to have meaning. Yet a life too tightly aimed can be missed very things it was searching for. तो अभी ये है कि भाई कंफर्ट जोन, सच में वही वाला बात की, रहना है कंफर्ट जोन में, डिस्कवरी करना है, क्या करना है, कहाँ पे समझे हम लोग ये सारी चीजें, राइट? दिस इज द थिंग. सो रियल क्वेश्चन इज दैट व्हेन इज अ वैंडरिंग अ लॉस ऑफ द पाथ एंड व्हेन इट इज द पाथ इटसेल्फ. क्या समझ रहे हो आप? इतना फिलोसॉफिकली डीप थॉट आउट है ये, कि जहाँ पे अगर आप इस सारे क्वेश्चन को थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस के साथ मर्ज करोगे, मैरिनेट करोगे, it will give, definitely will fetch you a very good marks, which is a topper like marks. क्योंकि आर्ग्यूमेंट का डेप्थ ही उतना दिया है हमने कि हाँ सच में वैंडरिंग क्या है, कहाँ पे वो पाथ मिस हो जाता है, कहाँ पे वो पाथ अपने आप बन जाता है कि हाँ वी हैव टेकन समथिंग एल्स. तो वैंडरिंग का एक पॉजिटिव मीनिंग भी यहाँ पे हम लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं. सो दिस इज हाउ यू हैव टू गिव योर इंट्रोडक्शन. ओके, सो आई होप you got the crux. Every time if you're going and if this is your homework, this is how you have to do. First thing that find out is there any tension. टेंशन फिगर आउट करने की कोशिश करो. टेंशन तभी आता है, बार बार बताया है, दोबारा बताऊंगी, टेंशन तभी फिगर आउट होंगे जब आप एक चीज समझोगे कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या दिया गया है ऐसे टॉपिक का और इसके लिमिटेशंस क्या होंगे. जब आपको ये 2 चीजें पर्टिनेंटली समझ में आ जाएंगी, आप टेंशन अपने आप फिगर आउट कर लोगे. सेकंड, लाइक बोथ द साइड्स नीड टू बी ऑनर्ड इन द इंट्रोडक्शन. सेकंड इज द कोर इशू नेम्ड. सो मेटाफर जो है, अगर मेटाफर को ओपन करो, फिर अगर कोई मेटाफर दिया है तो इंट्रोडक्शन में वो प्रिसाइजली समझ में आना चाहिए कि यस यू हैव अंडरस्टूड कि व्हाट द मेटाफर इज एक्चुअली looks like. Okay, text is the pertinent questions there. So 1, 2, maximum 3 questions if you want, put it like that, but at least one question which is giving the insight. अगर नहीं समझ में आ रहा है, if you are a beginner, try and give at least one question to it. Okay, that could stand as an elevator pitch कि जो आपकी थिंकिंग प्रोसेस कितनी क्रिटिकल है और आप किस हिसाब से गहराई के साथ सोच सकते हो. जो भी आपको एक ओपिनियन दिया गया होता है ना, ऐसे टॉपिक ऑफ व्हाट, दीज आर द विजडम, दीज आर द ज्ञान गिवन टू यू. इफ यू आर एबल टू गो एंड सी थ्रू द थिंग्स, और जो स्ट्रक्चर्ड ओपिनियन है उसके बियॉन्ड देख सकते हो, यही तो चाहते हैं एग्जामिनर्स, यही तो चाहती है यूपीएससी कि आप आपके सामने जो भी सिनारियो दिया गया उसके परे जाके कोई रियलिटी देख पा रहे हो या नहीं. ये रिफ्लेक्टिव होना चाहिए और इसलिए एलिवेटर पिच बड़ी काम की आती है. ओके, सो दिस 3 एलिमेंट्स
try to incorporate in your introductions. Send us your introductions, and we can actually tell you where you can go, where you have a scope to improve. You can actually comment in this comment section, send us a message, and we'll try and figure it out which is the best introduction. So far we are giving you some topics. ठीक है, अगर आपके पास कोई और टॉपिक है उस हिसाब से आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए. Would love to interact more with you. So if you're liking this initiative, please do like this video. Let us know in the comment section. Please do share and prepare well. We need a people who can have a very good intellect rigor and not on a superficial arguments. Okay? So stay with us and keep watching.